Good morning, class 9th. Today we are starting chapter 11 construction, exercise 11.2, page number 195, question number first. Construct a triangle ABC. Then we will write given in triangle ABC. ट्राइंगल एबीसी में हमें क्या दिया गया है? BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंड AB प्लस AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. AB प्लस AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है, जो हम करेंगे वो लिखेंगे. देयर आर टू मेथड्स, है ना. फर्स्ट मेथड, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. सो नाउ वी आर ड्राइंग BC इज 7 सेंटीमीटर. This is BC, 7 centimeter. Steps of construction. First line, draw a line segment BC is equal to 7 centimeter. 7 centimeter. Okay. Now second, we have to draw an angle 75 degree. I am drawing the angle of 75 degree with the help of compass. Then those students who are absent during the exercise 11.1, they have to understand how we draw the 75 degree angle with the help of compass. It is not new for you because we have learned it in previous class 6 also. But I am repeating. Take an arc of any radius and measure with center B. With center B, cut an semicircle, right? And with the same this point we cut another arc. This is 60 degree, cut one more arc. It is 60 plus 60 120, and now we bisect it. So this angle will form 90 degree. 90 degree, and we join this line with dotted line. ये क्या है कि उसको चौक डिस्टर्ब हो गया, तो यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया. एक्चुअली 90 डिग्री का स्ट्रेट यहाँ पर बनना चाहिए था उसको, है ना. हमें point required point will be this, and now this is the 30 degree and this is also 30 degree. So we bisect the 30 degree angle. तो 15 डिग्री 60 में मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 75. इतना प्रोसेस समझ में आ गया आपको? Now we are bisecting the 30 degree. Take an arc of any measure and cut to intersecting arc. Got it? We have to given the name of the arc, like this is P Q R. Okay? And this is S, and this point is intersecting this T. And join BT. What will be the measure of this angle? 75 degree. It is 75 degree. And draw a big line segment, because we need 13 centimeter. Okay? We have given AB plus AC is 13 centimeter. Okay? So that will be much length 13. तो हम डबल मेजरमेंट ले रहे हैं ना, तो मैं 13 को 2 टाइम कट करूंगा. इस रेशो में डायग्राम ये 13 नहीं है, अभी 6.5 है. यहां से यहां इतना जाएगा 13 मेरा.
आया समझ में आपको? इस रेशो में ये 7 सेंटीमीटर अगर इतना है तो इस रेशो में 13 मेरा वहां जाएगा। आप इमेजिन कर पा रहे हैं? ये गिवन रफ करना पड़ेगा मेरे को, है ना? Yes. गिवन रफ कर देते हैं हम, अलग लिख दूंगा मैं गिवन, फिर से काटना पड़ेगा मेरे को क्योंकि डायग्राम ज्यादा जरूरी है। गिवन आप लिख चुके होंगे। थर्टीन सेंटीमीटर के आर्क को मैंने 2 पार्ट में काटा है क्योंकि मेरा आर्क में नहीं आ रहा था ना, मैंने डबल लिया। ये 13 सेंटीमीटर का आर्क है ऐसा। 2 टाइम आपको नहीं काटना है, आपको डायरेक्ट 13 सेंटीमीटर काटना है। एंड वी आर गिविंग दिस पॉइंट एज डी, गॉट इट? और जॉइन सी डी, जॉइन सी डी, गॉट इट? एंड नाउ हमें क्या 13 सेंटीमीटर जो आर्क है वो ए बी प्लस ए सी, 13 सेंटीमीटर क्या है? ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, है ना? नहीं ये नहीं आएगा बेटा, अब ये यहाँ नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि ए बी और ए सी मिलकर 13 सेंटीमीटर। तो कैसे? ये देखिए, take an arc of any measure and with center D cut an arc here EF, with center D cut an arc as EF, and with the same arc we will not disturb it, with center C cut here also another arc G E F G H, got it? And now again measure EF, EF को मेजर किया हमने हाथ में, ठीक है? And with the same radius take a center G and cut at R G high, H I कह सकते हैं, है ना? हमने I लिया, ठीक? And join C I, join as C I. And this intersecting point is known as A. Then AB plus AC is equal to 13 सेंटीमीटर, क्योंकि this angle and this angle are equal. ये दोनों एंगल हमने क्या किए? इक्वल बनाए, तो their side will be equal. तो जितनी साइड ये थी ना उतनी साइड ये है, तो 13 में से ब्रेक हुई ना, then AB plus AC is equal to 13 से। आ गया आपको समझ में पूरी क्लास को? और ऐसा नहीं, जब आप स्वयं ड्रॉ करेंगे तभी आप इसको परफेक्ट मानना कि आपको समझ में आए। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को आपको लिखना है, क्लियर? सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड है जिससे हमने एंगल के द्वारा बनाया। व्हाट इज सेकंड मेथड में अब हम क्या करेंगे पता है आपको? सेकंड मेथड बताता हूं। इतना तो हमको सेम करना है, 75 डिग्री बनाकर ये ट्राइंगल बी डी सी तो बनाना ही है, इतना तो कॉमन चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर, दिस इज एज BC 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री हियर। फिर से देख लीजिए 75 डिग्री का एंगल बनाना। टेक एन आर्क ऑफ एनी मेजर विथ सेंटर दिस, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ दिस एंगल? 60 डिग्री, एंड दिस विल बी 120 डिग्री, एंड नाउ वी बाइसेक्ट इट, द न्यू एंगल फॉर्म विल बी 90 डिग्री। यहां तक प्रोसेस समझ में आ गया आपको? यस सर। तो 90 डिग्री तो हर बच्चा बना सकता है, 60 डिग्री बना सकता है, 120 बना सकता है। यस सर। थ्री एंगल तो आप सीख ही चुके, बट हमें 90 नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको सिर्फ ये पॉइंट चाहिए था हमको। दिस इज E, दिस इज Q and this is R, and now we bisect the RP. Okay? Yes sir, yes sir. Take an arc of any measure, थोड़ा आर्क छोटा लेंगे क्योंकि एंगल 30 डिग्री का है, तो आर्क छोटा लेंगे तो एग्जैक्टली बाइसेक्ट होगा। एंड जॉइन
इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज एट T। अब यहाँ पर सेकंड मेथड में रफ करना पड़ेगा क्योंकि ये फिर हाइट तक जाएगा, पेज नंबर भी रफ करना पड़ेगा। ओके, नियर यहाँ तक हो जाएगा। यही सेकंड मेथड से जा रहा है, समझ में ना? Yes, sir. सेकंड मेथड, अल्टरनेटिव मेथड। एंड टेक एन आर्क ऑफ 13 सेंटीमीटर। भूल गए थे क्या? इस सेंटर P 13 सेंटीमीटर पूरा आर्क में नहीं आना है, इसमें ढल लिया ना मैंने, इसलिए मैंने 6.5, क्योंकि मैं मेजर का ट्वाइस कर रहा हूँ, उस रेशो में बन रहा। आ गया आपको 2 टाइम आर्क नहीं काटना, आपको डायरेक्ट 13 सेंटीमीटर कटेगा। आप एग्जैक्टली मेजर लेके काटेंगे। Okay, and this is 13 centimeter. These are also 13 centimeter. यहाँ से यहाँ तक ये पता है ना आपको, ये स्केल से देना आपको मेजरमेंट, बिल्कुल स्केल से लाइन आना चाहिए और पैरेलल, जितना डिस्टेंस है इतना ही डिस्टेंस है। मैंने गलत लिया, आप ऐसा नहीं लेंगे। ये भी 13 सेंटीमीटर है ना, पैरेलल लाइन से शो करना आपको, है ना बेटे? Yes, sir. इतना तो कॉमन बना दोनों में। अब हमने इतना एंगल यहाँ पर बनाया था इस ओर, अब इसमें एंगल नहीं बनाया है। हम इस DC साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। DC का, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम आधे से ज्यादा आर्क लेकर दोनों ओर कट करते हैं, पता है ना आपको? ठीक, विद सेंटर C एंड विद सेंटर D। ये तो प्रोसेस मालूम है ना आपको? Yes, sir. यू कैन डू इट। हाँ बोलो, क्या हुआ? कोई डाउट है किसी को? Sir. एंड जॉइन द इंटरसेक्टिंग आर्म। Got it? And these arms intersect ABS A, ADF A, and join this. This will be also ABC is the required triangle. ये लाइन सीक्वेंस सीधी बनेगी, हो बेटे? समझ में आया ना? Yes, sir. ठीक है ना? वेरी क्लियर? आ गया समझ में? Sir. Okay, thank you very much. And you have to write the steps of construction also.